Well, we are continuing with our series online here that is titled In Christ, Peace Replaces Confusion. हमारे सीरीज से हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे स्क्रीन पर लिखा गया है। मसीह में शांति और समाधान शंका या फिर संकोच को हटा देता है। I started this topic because I saw that many believers are still completely and surrounded by confusion and doubt in their lives. मैंने ये सीरीज इसलिए चालू किया कि कई विश्वासियां अपने जीवन में संकोच या फिर शंका से भरे पड़े हैं या फिर उससे ढके हुए हैं। And the reason this was happening with them is because they have not focused on what God says about them once they receive Jesus Christ. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने की वाणी पर, यीशु मसीह के वाणी पर जो कहा है उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तभी ऐसा हुआ। They continue to look at their situation and their problems and the people that stand up against them instead of looking at the one who lives inside of them. उनको ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो दुनिया में उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पर ध्यान बटाते हैं, ना कि जब उनको यीशु मसीह पर अपना आश्रय, भरोसा और ध्यान बटाना चाहिए। Praise the Lord. And we have understood that fear and confusion is not the portion of someone who is following Jesus Christ, but it is something that God uses to destroy those that stand up against the children of God. वो इसीलिए हुआ क्योंकि भय और संकोच परमेश्वर से नहीं है, परंतु वो परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले लोगों पर और दुनिया पर आश्रय करते हैं, इसके लिए ऐसी परिस्थिति आई। Now, what is happening in everyone's life is that first thing they do is they start with doubt in their hearts. क्या होता है सबके जीवन में? सबसे पहली बात यह है कि उनके जीवन में वो संकोच या फिर शंका से उनका जीवन शुरू करते हैं। That doubt ends up in confusion. वो शंका संकोच में बदल जाता है। And then when that confusion gets out of control, all you feel is fear. जब वो शंका भय में बदल जाता है या फिर संकोच में बदल जाता है, फिर वो भय में उतर आता है। And when that fear gets a hold of your heart, you can no longer do anything right in your life. और जब वो भय आपके हृदय को जकड़ लेता है, तब आगे जाके आप आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। That fear stops you from even opening your Bible and reading God's word. वो डर आपको वचन खोलने में, वचन खोल के बातें पढ़ने में आपको भय जकड़ लेता है। That fear stops you from even praying to God and spending time with Him. वो भय आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने में और परमेश्वर के साथ एक संगति बनाने में रुकावट बन जाता है। And that fear also stops you from simply spending time with the Lord in worship and listening to worship songs. और ये भय आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर के आराधना गीतों को या फिर वाणियों को या फिर भजन को सुनने से आपको रुकावट करता है। Because every time you open the Word of God and every time you try to pray, every time you try to listen to a song, the same voice comes inside your head and says, "Is this really working?" क्योंकि वही भय या फिर शंका आपके हृदय में जकड़ लेता है और आपसे सवाल करता है, क्या है सच में काम कर रहा है? Is God really going to take care of me and set me free from this problem? क्या परमेश्वर मुझे इस समस्या से कभी बाहर निकालेगा? Now, when this happens, then the devil has won the battle. जब ये होता है तो शैतान अपने युद्ध में विजय हो जाता है। So what you need to do, you need to go back to the Word of God and reread the promises that are in the Bible. आमीन। ऐसे हो तो क्या करना चाहिए आपको? वचन पर जाकर परमेश्वर के वाणियों को, परमेश्वर के जो भी वायदे हैं उसको बार बार दोहराते हुए पढ़ना। We saw how in the battle of Gideon, God sent fear before the battle even started.
हमने देखा गिदेन के विषय में उस भाग में न्यायों के पुस्तक में कैसे लड़ाई या फिर युद्ध शुरू होने से पहले परमेश्वर भय डाल देता है शत्रु की छावनी में। And as we know, the devil is a copycat. और हमें जैसे पता है शैतान हमारे हर परमेश्वर के चीजों को उसको कॉपी करता है या फिर जैसे है वो है उसे वो दोहराना चाहता है। The devil, what he's doing right now with us is he is sending fear before we can even start the battle. वही चीज जो भय उसमें डाला गया वो भय हमारे में डालना चाहता है ताकि हमारी युद्ध शुरू होने से पहले हम भयभीत हो जाए। Because when you start to read the word, you are doing spiritual warfare. क्योंकि जब आप वचन मनन करते हो आप एक आत्मिक युद्ध में लड़ाई में आप उतर आते हो। When you start to open your mouth and declare the word of God and pray, you are doing spiritual warfare. जब आप अपने मुंह को खोलते हो और वाणी को कहते हो परमेश्वर के तब अपने आत्मिक युद्ध में या फिर एक लड़ाई में आप जुट जाते हो। When you start to worship God with songs and praises, you are doing spiritual warfare. और जब आप परमेश्वर की वाणी को पढ़ते हो आप आत्मिक लड़ाई या फिर युद्ध शुरू हो चुकी है आपके लिए। I have a sign on my wall over here in front of me, and it says a worshiper is not a warrior. मेरे सामने दीवार के सामने एक लेख ऐसा लिखा है दीवार पर, जो आराधना करता है वो संकोचित या फिर चीजों के बारे में सोचने नहीं लगता या फिर भयभीत नहीं हो जाता। So, and it says a worshiper is not a warrior, but a worshiper is a warrior. Means he Amen. does war. Yes. ऐसे दीवार पे लिखा है जो आराधना करता है, आराधक है, वो भयभीत नहीं होता, लेकिन जो आराधना करता है वो एक योद्धा बन जाता है। Praise the Lord. So why do you think that you are constantly attacked by fear? क्यों आपको ऐसा लगता है लगातार निरंतर आप भय से जुड़े हुए हो या फिर आप पे जकड़ा हुआ? Because the devil has been there from the beginning, seeing how God works with the enemy. क्योंकि शैतान शुरुआत से वैसे ही है और देखता है कैसे वो परमेश्वर के साथ युद्ध और लड़ाई करते हुए आता। And fear is one of the greatest strategies that God uses to destroy the enemy of the people of God. जैसे हमने देखा कि वो एक हमारी कॉपी करने वाला है या फिर नकल करने वाला है, इसके लिए शुरुआत से वो देखता है कि कैसे परमेश्वर भय लाता है और उसके योजनाओं को नाश कर देता है। उसी नकल को वो दोहरा कर हमें अंदर भयभीत लाने की कोशिश करता है। Let's go to Exodus chapter 15, verse 11 to verse 14. निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय Exodus chapter 15, verse 11 to verse 14. निर्गमन का पुस्तक 15वां अध्याय 11 से लेकर 14वें वाक्य तक। Praise the Lord. Let me share that on the screen for you. मैं जल्दी आपके लिए स्क्रीन पे डालूंगा। Exodus chapter 15, verse 11 to verse 14. निर्गमनों का पुस्तक 15 अध्याय 11 से लेकर 14वां वाक्य तक। Now here it's very clearly talking about the people of Israel and who their God is. यहाँ व्यक्त और स्पष्ट रीति से कहा गया है कि कौन इस्राएल है और कौन उनका परमेश्वर। It says, who is like you among the gods, Lord, who is like you, majestic in holiness, awesome in splendor, and working wonders. ये यहोवा देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महा प्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता। Amen. Says you stretched out your right hand and the earth swallowed them. Amen. तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निकाल लिया है। This is talking about the story of the Exodus when the people of Israel crossed the Red Sea. यहाँ निर्गमन में इस्राएलियों की कहानी को बताया जाता है जब वो लाल समुद्र को पार करते हैं।
Then verse 13, you have led with your gracious love this people whom you saved or redeemed. You have guided them with your strength to your holy dwelling. 13वां वाक्य, अपनी करुणा से तू अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है, अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान के ले चला है। Then verse 14, the people heard and they quaked. Anguish has seized the inhabitants of Philistia. 14वां वाक्य, देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फिलिस्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। Glory to God. Now, let me put verse here, KJV version, because here in this version, it says, sorrow shall take hold of the inhabitants of Palestina. So some people confuse that with Palestine. और किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा गया है कि लोग सुनेंगे और डर जाएंगे और भयभीत और दुख उनके फलस्तीना के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग संकोच में हो जाते हैं कि ये पैलेस्टाइन के बारे में बताया गया। This is not Palestine. This is simply talking about the land where the Philistines, which were enemies of God, lived. ये लेबनान के पैलेस्टाइन के बारे में नहीं है, ये फिलिस्तियों जो पैलेस्टीना नामक जगह पर रहते हैं उनके बारे में। And then let's continue verse 15. Then the chiefs of Edom were terrified, the nobles of Moab trembled uncontrollably, and all the inhabitants of Canaan melted away. एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन में पिघल जाएगा। 16, dread and fear have fallen on them because of the strength of your arm. They have become silent as a stone until your people pass by, Lord, until this people you acquired, means you purchased, pass by. उनमें डर और घबराहट समा जाएगी, तेरी बाह के प्रताप से वह पत्थर के समान अबोल हो जाएंगे। जब तक ये यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल ना जाए, तब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। Praise God. So here we are seeing a story that the whole world heard about, and that the people that were around the people of God heard about this wonderful miracle. और हमने यहाँ एक कहानी पढ़ा, या फिर पूरी दुनिया जगत को पता है कि परमेश्वर के लोग कैसे एक बड़े लाल समुद्र को पार किए। So the people that were supposed to fight with the people of God when people of God were reaching Canaan, okay, the promised land, they heard the story and they were in fear. और ये कहानी वो है जो कनान में पहुंचने वाले थे और कैसे उन्हें डर जकड़ लिया था और कैसे उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, उस कहानी के बारे में यहाँ बताया गया। So God is doing miracles in your life, and He will do miracles in your life so that anyone does not dare stand up against you. आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा, चिन्ह चमत्कार को करेगा, ताकि आपके सामने जो भी आए वो आपके विरोधी ना बने और वो आपके परमेश्वर से भयभीत और आपसे भयभीत हो जाए। So you cannot live anymore with fear. और आगे जाकर और अब से लेकर आप भय में ना जीवन बिता सके। Last week we gave you a couple of verses. We'll give you some more later on about how we need to use these verses every time we feel fear. हमें गए हफ्ते हमने कुछ वाक्य दिए थे, इस सप्ताह भी हम कुछ वाक्य को देंगे। किसी डर आ जाए, जकड़ जाए, तो कैसे आप इस वाक्य और वाणियों को पढ़कर भय से निकल आए और भय दूर भाग जाए। The next time you feel any kind of confusion in your mind about your future, about your present, you have to understand God is not the author of confusion according to His word. आमीन। यदि अगले बार जब आपको डर जकड़ जाए, भविष्य, आपके वर्तमान या फिर आगे वाले पिछले हुए जीवन के बारे में आपको डर जकड़े, तो आप ये वाणियों को पढ़िए और समझिए कि हमारा परमेश्वर वो लेख या फिर लेखक नहीं है जो हमें डर में जीवन बिताता है, वो एक आशा का परमेश्वर है। In other words, when you are walking with Jesus Christ, you will know exactly what to do, when to do, and how to do it. और जब आप परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर की वाणी को पढ़े, तब आपको समझ में आएगा कब चलना है, कब बैठना और कब जीवन में आगे बढ़ना।
And even the most beautiful thing about this whole idea is that even if you make a mistake, because you are close to Jesus Christ, it will turn around for your benefit. ये सोच या फिर ये सीरीज से हमारा उद्देश्य ये है कि जब भी जीवन में संकोच आए, शंकाएं आए या फिर शैतान आपके पापों को याद दिलाकर आपको पाप बोधित करे, तभी आप समझ जाए कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए मरा है और हमारे लिए एक आशाधारी परमेश्वर है। God is someone who does not want you to live in confusion. आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप शंका में अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाए। God is someone who does not want you to live in fear of the future. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आपके जीवन या फिर भविष्य में आके डर से अपना जीवन बिताए। God is someone who wants you always to know exactly what to do according to his will. परमेश्वर वो व्यक्ति है या फिर सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है जो चाहता है आप आशादारी जीवन और आशा से अपने जीवन को आगे बिताए। See, because when you walk in confidence, knowing what you need to do, you will then be also be able to guide others. जब आप भरोसा, निश्चय और आशा के साथ आगे बढ़ो, तब जाकर जीवन के उस छोर पर आप दूसरों को भी मार्गदर्शक बना सकते हो जब आप उस छोर पे पहुंच जाओगे। Because when you have been spending time with God and you have been spending time with the Holy Spirit speaks to you about your own life first. जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताए, पवित्र आत्मा से आप बातें करें, तब पवित्र आत्मा आपसे आपके जीवन के बारे में आपसे बातें करने लगेगी। Now, when you have done that for a while and you are practicing in your own life how to be guided by the Holy Spirit, you will learn to recognize that voice of wisdom. जब आपके जीवन में आपसे जीवन से शुरुआत होता है और जब आप वो करने लगोगे, आपको परमेश्वर की वाणी और दुष्ट आत्मा की वाणी में फर्क समझ आएगा और आप उस प्रति आपके जीवन को आगे बढ़ा पाओगे। And then once you are confident in that and you have done it regularly, when someone comes to you for counsel, you will be able to do that again for them. जब आप परमेश्वर के जीवन में भरोसा वाणी सुनकर आप आगे बढ़ोगे और जब कोई आपके पास आएगा सोचकर आप भरोसेमंद होकर निश्चिंत होकर परमेश्वर की वाणी पर भरोसा करोगे, आप उनको मार्गदर्शक और वाणी परमेश्वर की बता पाओगे। Now, how can we achieve this? It's very simple. All you have to do is fear God. बहुत सरल सी बात है, कैसे हम इसे पा पाएंगे? आपको परमेश्वर के भय मानना है और वाणी का पालन करना। You know, I was speaking to someone in the streets some months back, and we're talking about the Lord. He's not really a believer. He says he has read the Bible, and then he said, okay, yes, he is good. And I said, we have to fear the Lord. And he said, no, fear, but God is love. मैं रास्ते पे था, किसी से वार्तालाप कर रहा था, वाणी बता रहा था और उसने कहा मैंने परमेश्वर के वचन को पूरा पढ़ा है और मैंने जगह कि आपको परमेश्वर का भय मानना है, तो उसने कहा नहीं, परमेश्वर तो प्रेम है। At that moment, I realized he has not read the Bible, because if you read the Bible, it is completely filled with God saying, do this or I will do this to you. तभी मुझे समझ में आया कि वो परमेश्वर की वाणी को नहीं पढ़ा है, क्योंकि यदि आपने परमेश्वर के वचन को वाणी को समझा है तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है या फलाना फलाना करो, वरना परमेश्वर की हाथ या फिर आपके ऊपर परमेश्वर का कोप उठेगा। So the Bible clearly says the beginning of wisdom is the fear of the Lord. It's not going and asking everybody for counsel. It's not going and reading all these self-help books and watching YouTube videos. It is fearing the Lord, and you will have wisdom. परमेश्वर की वाणी जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर का भय ज्ञान या फिर बुद्धि का शुरुआत है, ऐसा वचन कहता है, ना कि आपकी YouTube या फिर कोई पुस्तक या फिर किसी और की वाणी प्रचार को सुनते रहो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है आपको। Now, many people come to us for guidance in their life, they come with problems, and we wait before the Lord and we give them God's counsel. आमीन। कई लोग हमारे पास परमेश्वर की वाणी या फिर सीख पूछकर जीवन के भविष्य के बारे में पूछ कर आते हैं। जब वो हमसे पूछते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर वाट जोत कर परमेश्वर से वाणी प्राप्त कर उन्हें हम कहते हैं, Now we fear the Lord.
और हम परमेश्वर का भय मानते हैं। We don't do anything in our life without asking the Holy Spirit first. हमारे जीवन में हम कुछ उस ऐसे चीजों को नहीं करते बिना परमेश्वर से पहले पूछे। That's Glory to also God. for our lives, and also when someone comes to us, we don't give any counsel that has not first given to us by the Holy Spirit. आमीन। या वो तो हमारे जीवन के बारे में हो, या फिर कोई हमारे सामने आता हो काउंसलिंग पूछते हुए, हम परमेश्वर से बिना पूछे बिना मांगे हम कुछ नहीं कहते उनको, हमारे जीवन में हो या किसी और व्यक्ति के जीवन में हो। Now, I am seeing the same pattern being repeated over and over again every time we counsel someone. और जब हम किसी से काउंसलिंग करते हैं, बातें करते हैं, यही भाग, यही दोहराना हमारे जीवन में आता रहता है। कोई आता है, हम परमेश्वर से वाणी मांगते हैं, वाट जोते हैं, फिर हम उनसे बातें करते हैं। Now, those that obey, they get what Amen. God has prepared for them. Those that delay to obey or do their own thing are still waiting for answers. Amen. जो परमेश्वर का भय मानकर उनकी वाणी वचन का पालन करते हैं, उन पर परमेश्वर अपनी करुणा प्रकट करता है और उनके प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है। जो परमेश्वर का वचन का पालन नहीं करता, परमेश्वर का भय नहीं मानता, वो अभी भी वाट जोत कर बैठे रहते हैं। Now, I'm not saying this to make our ministry something special or great. I'm saying this because we live this way on a daily basis, fearing God, making sure we are not breaking any one of His commandments. ऐसे गलतफहमी में ना रहिए कि हम हमारे सेवकाई के बारे में ऊंचा बढ़ाकर बता रहे हैं, ना कि हम उसे बता रहे हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारी सेवकाई में परमेश्वर से मांगकर, परमेश्वर से वाणी प्राप्त कर कर खुद के जीवन में और दूसरों के जीवन में हम वाणी बताते हैं। Because we are very clear as leaders in the ministry, if we give you the wrong counsel, God will ask me for an answer. क्योंकि हम ऐसा भरोसा रखते हैं, जैसे मैंने कहा, हम परमेश्वर का भय मानते हैं। बिना कोई गलत वाणी आपको देकर परमेश्वर का कोप, या फिर हम आपके लिए जवाबदारी है, इसके लिए परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर आएगा यदि हम आपको गलत वाणी बताए तो। I would rather, every time you come for counsel, I would rather say, go and read the word and figure it out. ना तो मैं यही जवाब दूंगा आपको सरलता के साथ, यदि परमेश्वर की वाणी ना हो, जाइए, वचन को पढ़िए और खुद समझ जाइए। But the Lord is gracious to us, and we care about those that come to us, and we want to set you free from this confusion and give you what the Lord is telling you to do. परमेश्वर करुणाधारी है हमारी सेवकाई और हमारे ऊपर। हर बार कोई हमारे पास आकर कुछ मांगता है या फिर मार्गदर्शन चाहता है, परमेश्वर हमसे बातें करता है उनके विषय में, और हम उनसे बातें करते हैं जो परमेश्वर ने हमें कहा उनके विषय में। Now let's go to this verse over here, Psalm chapter 25, verse 14. भजन संगीता 25वें अध्याय 14वां वाक्य में हम जाएंगे। And here once again, the fear of the Lord is very important for you to be set free from confusion and fear of the world. और इस विषय में भी परमेश्वर का भय दुनिया से विरोध रखने के लिए, परमेश्वर का भय और आशा हमें हर चीजों से दूर रखता है। Says the intimate counsel of the Lord is for those who fear him. यहोवा के भेद को वही जानता है जो उसे डरता है। And then it says, so they may know his covenant. और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। What a wonderful, wonderful promise. Yes. You know how कितना आशादारी और अद्भुत वाक्य है वो। You know how beautiful it is that we can actually be intimate with the Lord in counsel. इतना सुंदर है वो जब हम परमेश्वर को, वचनों को भेद समझे और उनके साथ एक गहरा रिश्ता, गहरा संबंध बना सके। When you fear God truly and you just want to live for him and nothing else matters in life, God will give you that intimate, secret counsel for your life. जब आप परमेश्वर के साथ मित्रताई में हो या फिर परमेश्वर के साथ गहरे संबंध में हो, आपको उस गहरे संबंध के द्वारा परमेश्वर चीजों में भेद बताएगा और क्या सही है क्या गलत है, और आपको वाणियों के वचनों के द्वारा बातें करेगा। And then it says that
Not only that, he will give you counsel, but he will also remind you of his covenant with you. और उतना ही नहीं, वो भेद आपको समझाएगा और अपने वाचाओं में फर्क जो है उसे प्रकट भी करेगा। Now, a covenant is something that is very, very serious. It's not the same thing as a promise. एक वाचा या फिर व्यवस्था वाचा जैसे नहीं है, उसमें एक फर्क है। See, a promise is something that can be conditional. वाचा जो है वो एक कंडीशनल हो सकता है, ऐसे करो तो आपको वैसे होगा, ऐसा है वाचा। Now, a covenant is something that God does with you, and even if you fail at everything in life, he will still do his part. और व्यवस्था वो है जो कुछ भी आपके जीवन में हो, फिर भी आप उस व्यवस्था के आपके जीवन में आप पालन करते रहोगे। So God takes covenant very seriously, and he reminds you that I have spoken this for you, so I will make sure it happens in your life. और व्यवस्था वैसे है कि मैंने तुमसे ये बात किया है और इसका फर्क तुम जानते हो और मैंने तुमसे बात किया है इसके विषय में। Now, for you to enjoy this covenant, you have to first fear the Lord. और इस व्यवस्था का पालन करने के लिए सबसे पहली बात आपको ये करना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। When you are following Jesus Christ and you are fearing only him, you will never fear anyone else in your life or anything else in your life. जब आप परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करते हो, आप कोई चीज से, कोई व्यक्ति से, परमेश्वर के अलावा किसी से आप नहीं डरोगे। Why? Because when you fear God, God will remind you, have I not said in my word, I will do this for you. आमीन। जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, वैसा कहेगा, क्या मैंने तुमसे ये आज्ञा नहीं किया है कि तुम ये करो तो मैं तुम्हारे लिए फलाने आशीषें या फिर कार्य तुम्हारे लिए कर दूंगा। Hasn't God said in the word that he's all powerful? जैसे उसने कहा है, मैं सामर्थशाली परमेश्वर हूँ, शक्तिशाली परमेश्वर हूँ, वचन में कहा है उन्होंने। God will remind you that he is Jehovah Jireh, the provider. परमेश्वर आपको याद दिलाएगा, वो यहोवा ईरे है जो आपको प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। Praise God God। will remind you that he is Jehovah Rohi, your shepherd. और वो याद दिलाएगा कि वो यहोवा रोही है जो आपका चरवाहा है। God will remind you that he is Jehovah Shammah, the one who is always with you. वो आपको याद दिलाएगा यहोवा शम्मा है जो आपके साथ हमेशा है। And there's so many names of Jehovah that he himself will remind you as a covenant once you start to fear him and stop fearing the world. और उसमें कई बातें ऐसी है कि परमेश्वर के नाम और वचन है कि वो आपको बताए कि आप डर जाए और परमेश्वर के भय से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से आप परमेश्वर की वाणियों का पालन करें। Let's go to the verses we've been reading this past month, which was in Exodus. वे कुछ सीरीज या फिर महीने से हम निर्गमन से वाक्य पढ़ते आ रहे हैं, उसमें हम जाएंगे। Exodus chapter 23. निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय। Before the service, I asked on the WhatsApp chat who had taken notes and to remind me where we stopped last time, and only one person answered. मैंने WhatsApp में सवाल किया था, गए सप्ताह मैंने कहाँ रुका या फिर कोई याद रखता है कि मैंने कहाँ रुकाया, और मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि एक ही व्यक्ति ने उसमें जवाब दिया। खुशी इतनी नहीं है. It's not that joyful. I wish more people knew where we stopped. But it's उतनी okay. खुशी नहीं है। मेरी आशा ये थी कि और भी लोग बताए कि हम, ताकि आप ध्यान दें कि आप बताएं कि हमने कहाँ रुका था पिछले सप्ताह। And let's look at chapter 23, verse 22. निर्गमन का पुस्तक 23वां अध्याय 22वां वाक्य। It says, indeed, if you carefully obey him and do everything that I say, then I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries. यदि तू सचमुच उसके माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। And then verse 23 says, for my angel, which we understood before that is referring to Jesus Christ who goes before us, for my angel will go ahead of you and will bring you to the Amorites, the Hittites,
the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, and the Jebusites, and I will annihilate them all. और इसी रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे अमोरी, हित्ती, फरीसी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों से यहाँ पहुंचाऊंगा, जो हमने गए सप्ताह पढ़ा और समझा कि वो परमेश्वर है जो आगे जाता है। So it's a wonderful promise that if anyone dares stand up against you, God will make, if they are your enemies, they will become God's enemies. ये अद्भुतकारी और सामर्थशाली ताकतवर वायदा है आपके लिए। यदि आपके विरोधी कोई बने, परमेश्वर आकर उठकर उनका विरोधी बन जाए। And the next verse says that God Himself will take us to face our enemies and destroy every single one. और दूसरा वाक्य ऐसा कहता है, परमेश्वर खुद ही आकर तुम्हारे शत्रुओं का सामना करेगा और वो यह देखेगा कि उनका विनाश वो खुद करे। In other words, He will not keep you away from your enemies or not have you face them. He will make you face them. He will take you to them, and you will see them getting destroyed. ऐसा नहीं है कि आपके शत्रुओं से छुपा कर रखेगा, वो आपको लेके जाएगा, सामना करेगा और परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा। Now, I want to give you some homework for this week. और ये सप्ताह के लिए कुछ काम होमवर्क देना चाहता हूँ आपको। Now, in this verse, you see that it mentions that the Lord will take us and bring you to the Amorites over here, the Hittites, the Perizzites, the Canaanites, the Hivites, etc., etc. Now, every single one of these enemies, every single one of these people that stand against God, they represent something in our life right now. और आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। 23वें वाक्य में जो भी परमेश्वर कहता है, अमोरी, हित्ती, फर्जी, कनानी, फलाना फलाना शत्रुए जो भी है, वो हमारे जीवन में किसी ना किसी तरह से आज सामना कर रहे हैं। This is referring to people back then, people that were not of God, who came against the people of God. Nowadays, those same people, those same names represent something for us in the natural or the spiritual. And I want you to Google it if you want to, or use any kind of AI and ask them, give me what this means for me now in the natural or the spiritual today. जो भी ये फलाना शत्रुओं के बारे में कहा है, उस समय परमेश्वर के लोगों के विरोधी थे, शत्रु थे, लेकिन आज के सदी में, युग में, हमारे जीवन में आत्मिक और मानसिक और इस दुनिया में फलाना तरीके से हमारे शत्रु बनकर हमारे सामने खड़े हैं। आपका होमवर्क ये है, आप उसे गूगल कीजिए या फिर जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसमें आप डालकर पूछिए, आज के युग में, सदी में, ये फलाना फलाना कनानी, हिबसी जो भी है, अमोरी, मेरे सामने कौन है वो आज का शत्रु। And you will be shocked to understand why you are feeling sometimes fear and doubt, and you're attacked with adultery and other things, because all these nations represent these kind of spirits. और आप चौकन्ने हो जाओगे, अचंभित हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि ये फलाना फलाना शत्रु कौन है आपके जीवन में आज, क्योंकि हम उस कुकर्मों में, दुर्मार्गों में या फिर बुराई जीवन में हम बिताते हैं। तभी हमें पता चलेगा कि इनकी शक्ति कैसे प्रबंध हमारे जीवन में रुकावट या फिर शैतानिक शक्ति बन जाती है। When you do this homework and you find something that you are facing right now, I want you to use this verse and say, Lord, go before me and destroy this enemy like you did in this verse. और इसको आप होमवर्क करोगे, खोजी भरोगे, इंटरनेट पे खोजोगे, और आपको जब पता चलेगा, इस वाक्य को उपयोग कर कर आप प्रार्थना करना, यीशु मसीह के नाम में आप खुद जाकर इसको दूर करें और नाश करें मेरे जीवन से। If I remember for next week, I will try to list these for you. If not, those that are joining with us, please put it on the WhatsApp group, or else even in the comments on social media. If you find the answers of what each one of these tribes mean, put it on there for all of us to benefit. ये हर एक वंश क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में और कहीं भी आप डाल सकते हो। यदि मुझे याद रहेगा तो मैं खुद डालूंगा, यदि नहीं तो
आप व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर यूट्यूब में आप कमेंट कर कर बता सकते हैं फलाना फलाना शत्रु क्या दर्शाता है आज के युग में और आपके जीवन के संबंध में। Because you have to understand one thing, that the what you are facing right now, every single fight you're facing has been there from the beginning of time. आपको यह बात समझना है कि और कोई भी चीज आपके जीवन में आप सामना कर रहे हो, फलाना आपके जीवन में का शत्रु बनकर आपके जीवन का आप सामना कर रहे हैं। Is the same enemy attacking mankind over and over again. यही शत्रु सदियों से और आज भी मनुष्य जीवन में बार बार दोहराते हुए शत्रु बनकर आता है। Praise Is the God. same people that always stand up against the people of God. यही फलाने वंश हमेशा परमेश्वर के लोगों के सामने आकर रुकावट उनके शत्रु बनकर खेद करते हैं। And there has only been one solution to every one of these attacks. एक ही उपाय है हर एक विरोधी और हर एक शत्रु और या फिर हर एक आक्रमण के लिए। And that is to fear the Lord and keep his commandments. आमीन। उसका यही सरल जवाब है, परमेश्वर का भय मांगिए और उसकी व्यवस्था और वाचाओं का पालन कीजिए। And use these verses to attack that enemy directly. और ये वाक्यों को उस विरोधी उस शत्रु का आप सामना कीजिए, उपयोग कीजिए आप आक्रमण करने के लिए विरोध में। Like I told you before, if you're facing confusion, all you have to say is in 1 Corinthians 14, it says that God is not the author of confusion. यदि आपको शंका है, संकोच है, तो पहले कोरिन्थियों के 14 अध्याय में परमेश्वर उसका अधिकारी या फिर लेख नहीं है जिसमें संकोच की आत्मा या फिर शंका की आत्मा हो। So if I am feeling confusion right now, this is not from God. यदि मुझे अभी शंका लगता है तो ये परमेश्वर से नहीं है। We saw in John chapter 8 verse 12 where Jesus says that he is the light of the world, and if anyone follows him, they will never walk in darkness. यूहन्ना 8 के 12 में ऐसा लिखा है, परमेश्वर जगत की ज्योति है, उनको जो पालन करता है उसमें जो चलता है कभी अंधकार में नहीं पड़ेगा। So you pray with this and you say, Lord, because you live inside of me and you are the light of the world, I will not ever walk in darkness or confusion. परमेश्वर क्योंकि आप मेरे अंदर वास करते हो, मैं कभी अंधकार में वास नहीं करूंगा और कभी शंका या फिर संकोच में निवास नहीं करूंगा। This is how you fight these enemies. ऐसे ही आप अपने शत्रु को, विरोधी का युद्ध या फिर सामना करोगे। Because by speaking the word of God, you are sending the word of God before you. परमेश्वर की वाणी को कहकर परमेश्वर की वाणी को आप आपके आगे बढ़ा रहे हो, भेज रहे This हो। is exactly the promise in Exodus that God will go before us and destroy the enemy. आमीन। निर्गमन में वही वाचा या फिर वायदा दिया है, परमेश्वर हमारे आगे जाकर हमारे लिए युद्ध करेगा या फिर हमारे विरोधियों शत्रुओं का नाश करेगा। What a wonderful thing it is to be in the presence of the Lord and to be winning every single battle around us. कितना अद्भुत कार्य और अचंभित बात है परमेश्वर के उपस्थिति में रहना और परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हर विरोधियों का, हर शैतानी शक्तियों का सामना करना और विजयी होना। I repeat this again, if you do not fear God, you will fear everything else. मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानोगे तो आप जीवन में हर चीज को से डरोगे। So get back to the word, get back to worship, get back to prayer, and every single one of these enemies will start to fall one by one in front of you. परमेश्वर की ओर लौट कर आइए, परमेश्वर से संगति बनाइए, परमेश्वर से प्रेम रखिए, ताकि परमेश्वर हर एक योद्धा या फिर युद्ध जो भी आपके विरोध में है उसमें विजय देगा आपको। God bless you, and we will continue with this next week, going deeper into how to face these enemies. परमेश्वर आपको आशीष करे और अगले सप्ताह और गहराई में जाएंगे कैसे हमारे विरोधी शत्रुओं का हम सामना कर विजय हो सके। प्रेज़ गॉड।